یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ خبریں سنیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ویشنو دیوی بھون میں جدید سہولیات سے لیس 2 پروجیکٹوں کا کیا افتتاح۔ بھارت تعلیم اور ہنر مندی کے ذریعے اپنے نوجوانوں کو نئے مواقع سے مستفید ہونے کے لیے کر رہا ہے تیار، وزیر اعظم نریندر مودی۔ صوبائی کمشنر کشمیر نے سری نگر سمارٹ سٹی لمیٹڈ کے مختلف پروجیکٹوں کی پیش رفت کا لیا جائزہ، کاموں میں تیزی لانے کی دی ہدایت۔ اور بھارت نے لڑائی سے متاثرہ اسرائیل سے اپنے شہریوں کو واپس لانے کے لیے آپریشن اجے کا کیا آغاز۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج ریاسی ضلع میں ترکوٹا پہاڑی میں واقع شری ماتا ویشنو دیوی بھون میں 2 اہم پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ جموں کے ہمارے نامہ نگار نے خبر دی کہ صدر جمہوریہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ہمراہ ماتا ویشنو دیوی بھون پہنچی، جہاں ان کا شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے CEO انشل گرگ نے استقبال کیا۔ صدر جمہوریہ نے شرائن بورڈ کی طرف سے بھون میں تعمیر کیے گئے 2 بڑے پروجیکٹوں اسکائی واک اور پاروتی بھون کا افتتاح کیا۔ اسکائی واک کی بدولت بھون کی طرف سے جانے اور درشن کے بعد واپس لوٹنے کے لیے الگ الگ راستے فراہم ہوں گے اور یوں بھیڑ بھاڑ ہونے کا احتمال ختم ہوگا۔ 31 دسمبر 2021 کو وہاں بھگدڑ مچنے سے 12 افراد کی موت ہو گئی تھی اور 16 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ اسکائی واک جدید ترین سہولیات سے لیس ہے۔ صدر جمہوریہ نے پاروتی بھون کا بھی افتتاح کیا، جہاں 15,000 لاکرز ہیں، جن میں روزانہ کی بنیاد پر 10 سے 15,000 شردالو نہانے کے علاوہ اپنا ساز و سامان جمع کر سکتے ہیں۔ صدر جمہوریہ نے ماتا ویشنو دیوی کی پوتر گفا میں پوجا ارچنا بھی کی۔ اس سے پہلے انہوں نے سری نگر کے راج بھون آڈیٹوریم کے احاطے میں ایک پودا لگایا۔ انہوں نے کل کشمیر یونیورسٹی کے 20ویں جلسے تقسیم اسناد سے خطاب کیا تھا اور اسکالروں کو میڈل اور ڈگریاں عطا کی تھیں۔ صدر جمہوریہ کل جموں کشمیر کے 2 روزہ دورے پر آئی تھیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت تعلیم اور ہنر مندی کے ذریعے اپنے نوجوانوں کو نئے مواقع سے مستفید ہونے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ کوشل دیکشانت سماروہ سے ورچوئل وسیلے سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ جب ملک کے نوجوان بااختیار ہوتے ہیں تو ملک اور زیادہ ترقی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں ہنر مندی کو مسلسل فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تقریباً 4 دہائیوں کے بعد نئی قومی تعلیمی پالیسی متعارف کی گئی ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ حکومت بڑے پیمانے پر نئے میڈیکل کالج، IIT، IIM اور ITI جیسے ہنر مندی کے فروغ کے ادارے قائم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے ذکر کیا کہ پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا کے تحت کروڑوں نوجوانوں کو تربیت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان روایتی شعبوں کو بھی مضبوط کیا جا رہا ہے جو روزگار فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پوری دنیا کو یہ یقین ہے کہ موجودہ صدی بھارت کی صدی ہے اور یہ کہ پوری دنیا باصلاحیت اور ہنر مند نوجوانوں کے لیے بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے نئے امکانات تلاش کیے جا رہے ہیں کیونکہ بھارت کی معیشت وسعت پا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں روزگار کے مواقع قائم کرنا ایک نئی بلندی پر پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے حالیہ سروے کا حوالہ دے کر کہا کہ پچھلے 6 سال میں بھارت میں بے روزگاری کی شرح سب سے کم ہے۔ تقریب سے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ کنونشن کے تحت تقریباً 10,60,000 نوجوانوں کو سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں۔ یہ کوشل دیکشانت سماروہ نئی دلی میں منعقد کیا گیا تھا۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے آج ایک میٹنگ میں صوبائی اور ضلعوں کی انتظامیہ سے یوٹی کے تمام سرکاری دفتروں اور اسکولوں میں 1 ماہ طویل صفائی مہم انجام دینے کی تاکید کی۔ میٹنگ میں سوچھتا مشن کا جائزہ لیتے ہوئے چیف سیکرٹری نے افسروں پر زور دیا کہ چونکہ ہمارے دیہات کھلے میں رفع حاجت سے پاک قرار دیے گئے ہیں، اس لیے یہ لازمی ہے کہ ہمارے سبھی دفتر کوڑا کرکٹ سے پاک بنانے کے علاوہ ان کی جاذبیت اور ارد گرد کو نکھارا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 50,000 دفتری احاطوں بشمول سرکاری اسکول عمارتوں کو مناسب طریقے پر صاف ستھرا کیا جانا چاہیے تاکہ وہ دکھنے میں اچھے لگیں۔
मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी ने मेरी माटी मेरा देश के तहत ब्लॉक सतह पर अमृत कलशों को नई दिल्ली रवाना करने की तैयारियों का भी जायजा लिया। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर वीके विधोरी ने श्रीनगर शहर में बुनियादी ढांचे की तरक्की और खूबसूरती के कामों में तेजी लाने के लिए आज एक मीटिंग में श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने 63 चौराहों पर नस्ब सभी IMTS कैमरों को फौरी तौर चालू करने पर जोर दिया ताकि ट्रैफिक के दबाव में माकूलियत लाई जा सके और सरकारी जायदाद को नुकसान पहुंचने का पता चलाने के लिए सख्त निगरानी भी की जा सके। मीटिंग के दौरान जानकारी दी गई कि 63 में से 49 जंक्शनों पर लगभग 1100 कैमरे काबिल कार हैं। इलाहाबादी जहांगीर चौक, जहां अक्सर सुबह और शाम के औकात के दौरान ट्रैफिक दबाव रहता है, में ट्रैफिक बंदोबस्त के ताल्लुक से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। डिवीजनल कमिश्नर ने डल लेक, अब्दुल्ला ब्रिज और बड़शाह ब्रिज को रंग बिरंगी रोशनियों से शाम के दौरान मुतहरिक बनाने के लिए भी कहा। डिप्टी कमिश्नर कफाड़ा ने आज आयुष्मान भव के तहत गवर्नमेंट आयुष डिस्पेंसरी करालपुरा में आयुष हेल्थ अवेयरनेस मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। इस कैंप में करालपुरा और इसके मुनहका इलाकों के लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपना टेस्ट कराया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ये जरूरी है कि आम लोगों को सेहत खदमात के साथ जोड़कर उन्हें महकमे सेहत की फायदामंद स्कीमों के बारे में जानकारी देने के लिए हेल्थ कैंप का इनेकाद किया जाए। इस बीच डिप्टी कमिश्नर ने वर्ल्ड साइट डे के मौके पर आज DC ऑफिस कफाड़ा में खुसूसी आई स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह किया। इस कैंप में DC ऑफिस के तकरीबन 50 मुलाजमीन की आंखों की जांच की गई। नाज़मी ज़राअत कश्मीर ने आज पापोर के जाफरान इलाकों का दौरा किया और हालिया बारिशों के बीच फसलों के मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ खेतों का मुआयना किया और मुतल्लिका जाफरान उगाने वालों से जाफरान फसल पर हालिया बारिश से पड़ने वाले मुस्बत असरात के बारे में फीडबैक हासिल किया। इत्तलात और नशरियात की वजारत के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा ने आकाशवाणी, दूरदर्शन और वजारत की दीगर मीडिया इकाइयों से कहा है कि वो मेरी माटी मेरा देश और विकास संकल्प यात्रा की कौमी मुहिमात की हर मुमकिन तशहीर करें। आज बेंगलुरु आकाशवाणी में वजारत के सीनियर अफसरान से खिताब करते हुए सेक्रेटरी मौसूफ ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश मुहिम 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में इख्तिताम पजीर होगी, जब 75,000 नौजवान कर्तव्य पथ पर मुल्क भर से जमा मिट्टी के साथ इकट्ठा होंगे और वज़ीर आज़म इसमें शिरकत करेंगे। तकरीब विकास संकल्प यात्रा की एक और मुहिम नवंबर में शुरू होगी। अपूर्व चंद्रा ने वजारत इत्तलात और नशरियात के मीडिया यूनिटों पर जोर दिया कि वो अवाम के फायदे के लिए दोनों मुहिमात की वसी कवरेज की मनसूबाबंदी करें। दरियास्ता मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत म्युनिसिपल कमेटी हाजम ने आज अमृत कलश यात्रा का इनेकाद किया। इस यात्रा को म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन ने कमेटी के दीगर अरकान और मकामी लोगों की मौजूदगी में झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के दौरान हर एक वार्ड से अमृत कलश में मिट्टी जमा की गई और बाद में इस अमृत कलश को जिला हेडक्वार्टर बांडीपोरा ले जाया गया। म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपोरा ने भी इसी तरह की यात्रा का एहतमाम किया। इस मौके पर कौम के लिए अपनी जानी निछावर करने वाले अफराद के अहल खाना को अवार्डों और मोमेंटोज से नवाजा गया। अलमदार कश्मीर हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स कल चरार शरीफ में बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज दोपहर बाद से ही वादी के अतराफ व अकनाफ से बड़ी तादाद में अकीदतमंद आस्तान आलिया वाक़ा चरार शरीफ पहुंचना शुरू हो गए थे। आस्तान आलिया पर आज नमाज इशा ठीक रात 8:30 बजे अदा की जाएगी, जिसके बाद रात भर रूह परवर मजालिस ता नमाज फजर जारी रहेंगी। नमाज जुमा कल 2:30 बजे अदा की जाएगी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माजिद जहांगीर ने कहा है कि इस उर्स मुबारक के लिए सभी इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। शोबा खबर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जायरीन के लिए ट्रांसपोर्टेशन और ठहरने समेत सभी दीगर माकूल इंतजाम किए गए हैं।
11 अक्टूबर को पोशाक बंदी थी वहाँ चरार शरीफ में। हमने पूरा हर एक काम का जायजा लिया, जितनी भी सहूलियात ज़ायरीन के लिए वहाँ नई बनाई है। तो उसमें हमने इस बार नए जो है, एक तो पार्किंग एरिया जो है वहाँ बहुत दिक्कत थी पार्किंग एरिया की, वो पार्किंग एरिया हमने डेवलप किया और इस बार उससे बड़ी सहूलत मिली है कि जितनी गाड़ियां दूर दराज से आई थी वो आराम से पार्क हो रही है। वो एरिया डेवलप करके उसको पूरा लेवल करके और बड़ा अच्छे स्पेशियस कर दिया गया उसको गाड़ियों के लिए। जहाँ व्हीकल वो पार्क होंगी वहां से ज़ियारत तक आने के लिए भी कुछ बुजुर्ग लोग हैं और कुछ लेडीज हैं जो बच्चों के साथ होती है, तो आगे का भी इंतजाम रखा गया। सफिशिएंट सोमोज वहां पे आरटीओ ने इंश्योर किया। दूसरा वहाँ एक ड्रेनेज की प्रॉब्लम थी उसी पार्किंग के और जो शॉप्स थी हमारी उनके आगे, तो उसको भी हमने डेवलप करके वो काम कंप्लीट किया। उससे जितने भी वहाँ शॉपकीपर से जो ज़ायरीन वगैरह आते थे वहाँ पानी जमा रहता था और उसकी वजह से वो एरिया जो है वो थोड़ा गंदा नजर आता था, वो भी हमने हल कर दिया। और बाकी ज़ायरीन के लिए खुसूसी हमने, क्योंकि कल जुम्मा का दिन है जो बड़ा दिन है 13 अक्टूबर जो उसका मेन डे है, उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि मस्जिद में अगर जगह कम पड़ेगी तो हमने सफिशिएंट जो हमारे तरपाल है उसका भी अरेंजमेंट किया है और उसके अलावा शामियाना वगैरह अगर धूप होगी ज्यादा तो शामियाना जो है वो उसका भी इंतजाम किया है ताकि जो सहन है वहां पे भी आराम से नमाज पढ़ी जाए। बलूचिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हजरत शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि इस वली कामिल और अजीमुल मर्तब अवलिया ने कुरान और हदीस की तालीम को अपनी मादरी जुबान कश्मीरी में पेश करके हमें दीन इस्लाम की नियामत और अजमत से फैज़याब किया है। एक मुश्तरका बयान में उन्होंने कहा है कि यह ज़ियारतगाह हमारे दिलों के लिए सुकून और हमारा मिली विरसा है। उन्होंने कहा कि हजरत मुंदरशी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम, इबादत, तकवा, कलाम और रूहानी कमालात हमारे लिए मशअल राह हैं। जमात हमदानिया के सदर मौलाना रियाज अहमद हमदानी और पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने भी हजरत शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। जहलम बज़्म अदब नायद खाई सोनवारी की तरफ से आज नायद खाई में मारूफ शायर सनाउल्लाह मखमूर की याद में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सरकर्दा शुहरा और अदीबों ने शिरकत की। तकरीब की सदारत शायर और नक्काद शाहबाज हाकबारी ने की, जबकि शायर और माहिर तालीम प्रोफेसर इस्माइल आशना इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। पुलिस ने अनंतनाग में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जिले के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के 50 तालिब इल्मों के लिए वादी की सैर दौरे का एहतमाम किया। इस दौरे का मकसद तालिब इल्मों को कश्मीर वादी में तवारीखी अहमियत के हामिल जगहों के बारे में रोशनास कराना था। दौरे के आज पहले दिन तालिब इल्मों को श्रीनगर की तारीखी जगहों और मुगल बागात का दौरा कराया गया। भारत ने लड़ाई से मुतासरा इसराइल से अपने वतन वापस आने के ख्वाहिश में शहरों की सहूलत फराहम करने के लिए ऑपरेशन अजय का आगाज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि इस सिलसिले में खुसूसी चार्टर परवाजों के बंदोबस्त के अलावा दीगर इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम भारतीय शहरों की हिफाजत, सलामती और बेहतरी के लिए पूरी तरह अहद बस्ता है। इसराइल में वाक़ा भारतीय सफारतखाने ने कहा है कि उसने आज की खुसूसी परवाज के लिए रजिस्टर्ड भारतीय शहरों की पहली फहरिस्त बजरिए ईमेल भेज दी है। उसने मजीद कहा है कि दीगर रजिस्टर्ड अफराद को भी परवाजों के जरिए वतन वापस लाने की खातिर पैगामात भेजे जाएंगे। भारतीय सफारतखाने ने मजीद कहा है कि वो 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन के जरिए इसराइल में भारतीय शहरियों को मदद फराहम करने के लिए मुसलसल काम कर रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26.5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 17.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा -0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।